और आपको सीधे संसद भवन लिए चलते हैं जहां राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले। Including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has positive. Please don't expose it. Please. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. Shri Anil, nothing is going on record. Shri Anil Sukhdev Rao Bonde. What is this? Please understand this. I'm shocked. सभापति महोदय, Shri सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि आज
नवीनीकरण ऊर्जा के बजट में जो प्रावधान रखा गया है उसके लिए मैं माननीय अर्थ मंत्री निर्मला जी सीतारामन तथा ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जी जोशी तथा हमारे विकसित भारत के उद्गाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। बांग्लादेश के मुद्दे पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, राज्यसभा में वो अपना बयान दे रहे थे। तो तमाम जो सिचुएशन, जो मौजूदा सिचुएशन बांग्लादेश की है वो उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि पूरे महीने वहाँ पर हिंसा होती रही, लगातार प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग वहाँ के जो आंदोलनकारी छात्र थे वो कर रहे थे, और जो रिजर्वेशन का वहाँ पर मुद्दा, जो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। हालांकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इंटरवेन किया उसको, लेकिन उसके बाद भी ये छात्र नहीं मान रहे थे और लगातार शेख हसीना के जो रेजिग्नेशन था, जो इस्तीफ़ा था, उसकी मांग कर रहे थे। और धीरे धीरे ये हिंसा पूरे देश में फैल गई थी, न सिर्फ ढाका में बल्कि चिटगांग में, राजशाही में, ये तमाम शहर इस हिंसा की चपेट में आ गए थे और लगातार यहाँ पर हिंसा हो रही थी। हम आपको बता दें कि 30% आरक्षण उन लोगों को बांग्लादेश में दिया गया था जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आते थे, या वो लोग जिन्होंने शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का साथ दिया था 1971 में। तो उन परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया था। तो और यही डिमांड थी कि ये पूरी तरह से पॉलिटिकल आरक्षण था। ये अवामी लीग जो वहाँ पर पार्टी है, जिसकी सरबराह थी, जिसकी अध्यक्ष थी शेख हसीना, ये अपनी पार्टी के लोगों को आरक्षण दिया था शेख हसीना ने। ये आरोप उन पर लग रहे थे, पॉलिटिकल आरक्षण था ये कहा जा रहा था। ये आरक्षण ना किसी जाति के आधार पर था, ना ये आरक्षण किसी आर्थिक आधार पर था। ये आरक्षण पूरी तरह से एक राजनीति के आधार पर यह आरक्षण दिया गया था, जिसमें शेख हसीना अपनी पार्टी के जो समर्थन में लोग थे उनको सरकारी नौकरी दिया करती थी। तो ये आरोप तमाम थे। इसके अलावा और भी तरह के आरक्षण थे वहाँ पर। अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण था 5%। इसके अलावा लगभग 50% से ऊपर वहाँ पर आरक्षण दिया जा रहा था। और इसी को लेकर वहाँ पर यह आंदोलन हुआ। आंदोलन बहुत उग्र रूप इसने ले लिया। लगभग 300 से ज़्यादा लोगों की मौत इसमें हुई। और उसके बाद जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए तो शेख हसीना को वहाँ से आखिरकार भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि बहुत कम समय उनको वहाँ से निकलने के लिए दिया। सेना ने उन्हें शायद 1 घंटे का समय दिया कि 1 घंटे में आप बांग्लादेश छोड़ दीजिए। उन्होंने फ़ौरन ही भारतीय जो अधिकारी थे उनसे संपर्क किया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस में वो कल शाम ही गाज़ियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच गई। उनके बेटे का भी बाद में बयान आया। उनके बेटे का बयान आया है शेख हसीना के वो अब कभी भी राजनीति में दोबारा वापसी नहीं करेंगी। शेख हसीना के बारे में, अपनी मां के बारे में उन्होंने एक बयान दिया। फिलहाल अभी जो हालात हैं, सेना उनको काबू करने की कोशिश कर रही है। सेना अध्यक्ष टेलीविज़न पर कल उनका एक बयान आया, उसमें उन्होंने कहा कि वो देश की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की है कि वो संयम बनाए रखें, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही थी ये पीएम हाउस की तस्वीरें, यानी शेख हसीना के घर के अंदर पब्लिक घुस गई थी। आपको बता दें कि ये वही एक तरह से तस्वीरें वही कुछ कह रही थी जो श्रीलंका में आपको देखने को मिला। यानी श्रीलंका में भी पीएम हाउस में लोग घुस गए थे। वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में किस तरह की तस्वीरें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और राष्ट्रपति देश छोड़ के जा चुके थे। और यही तस्वीरें अब बांग्लादेश में देखने को मिली, जहाँ पर शेख हसीना के घर पर पीएम हाउस में आम जनता घुस गई। ये छात्र आंदोलनकारी घुस गए, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई और कई इलाके ऐसे थे जहाँ पर आगजनी भी की गई।
पुलिस नाकाम रही। पुलिस पूरी तरह से इस आंदोलन को रोकने के लिए नाकाम रही। हालांकि कोशिशें बहुत पुलिस की तरफ से हुई, सुरक्षा बलों की तरफ से हुई। इंटरनेट वहाँ पर बंद कर दिया गया था ताकि अफवाहें ना फैलें, लेकिन उसके बावजूद आंदोलनकारी नहीं रुके। उन्होंने पुलिस थानों पर भी हमले शुरू कर दिए, उन्होंने पुलिस वालों की भी हत्या करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए, तब शेख हसीना ने देश छोड़ना ही अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र बेहतर समझा।